Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. Welcome you all to my new video. Our today's video is about a story. This story is prescribed for the first year student of CHSE Odisha board, and this story is especially for arts, science and commerce student who are pursuing compulsory English. Let's friend, our today's topic is the first non-detailed story or first short story of the invitation to, that is the three question. The story three question was composed by a Russian playwright, Russian short story writer Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was a Russian writer, Russian novelist, Russian essayist, and he was born in the year 1828 and died in the year 1910. His career of writing is divided into two segments. At the initial period of his life, he wrote novels and short stories. In the latter period of his creative writing, he focuses on playwriting and essay writing. And his famous works are War and Peace and Anna Karenina. So friends, our today's topic is a very interesting short story, that is three question. From the caption, from the heading, you must conclude that the story must be revolve around three questions. Let's see what is the three question. Who is disturbed by this three question, and in whose mind this three question comes, and how that person get the answer of these three question. Let's start with the text of this short story. So let's friend, we will see what is mentioned in the warm-up segment of this story. Unit 1, warm-up. Can you guess from the title what the story is about? To what time does the story belong? Read the following unit of the text, note the question that occurred to a certain king and see if they are still relevant today. तो फ्रेंड्स एठी वार्म अप रे मेंशन अछि कि ए स्टोरी रो टाइटल देखि कि आमे कहि परिबा कि स्टोरी काहा को बेस करी कि को मैटर ऊपर को थीम ऊपर बेस करी कि अछि और ए स्टोरी रो टाइमिंग टा कोन मींस केबे ए स्टोरी टा डेवलप हेछि. तो ऑब्वियसली आमे जते बेले भितर को जिबा टेक्स्ट भितर को जिबा निश्चित भाव में आमे जानि परिबा ए स्टोरीटा केबेकार अछि एंड स्टोरी रो मैटर ऑफ फैक्ट्स कोन अछि. जनरली हमकु जेतिको जना पडुछि तार हेडिंग रु तार कैप्शन रु थ्री क्वेश्चन. तो निश्चित भाव में ए स्टोरीटा तीनोटी क्वेश्चन को नेई कि ही डेवलप हेथिबो. तो देखिबा से तीनोटी क्वेश्चन गुडा कोन अछि एंड को समय रे एटा बिलोंग करथला. एंड आ गोटे जिनस अच्छी कि जहाँ एथे मेंशन अच्छी वेदर दिस थिंग्स आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट सिनारियो प्रेजेंट टाइम और नॉट. जहाँ घटना मान एथे वर्णित होइछि तो यही घटना गुड़ाक वर्तमान समय रे जुक्ति संगत अटे कि नाही सेटा भी आमे देखिबा. तो जीवा टेक्स्ट को आमे जानि परिबा. जो पर्यंत आमे टेक्स्ट को स्टडी न करिबा एनालिसिस न करिबा किछि आमे जानि परिबा नाही. तो देखिबा टेक्स्ट रे कोन अछि. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything. तो मुझे टिके पॉज हवा पई चाहे कि फर्स्ट लाइन रु हमकु जणा पड़ी जाउची ए स्टोरी रो टाइमिंग केबे, दैट मींस को समय रो स्टोरीटा. तो फ्रॉम द बिगिनिंग सेंटेंस इट वंस ऑकर्ड टू ए सर्टेन किंग. दैट मीन्स ये जो वर्ड अच्छी किंग अच्छी एथुर आमे एज्यूम करि परिबा प्रेडिक्शन करि परिबा कि ये स्टोरीटा जो समय रे अच्छी से समय रे निश्चित भाव रे
किंग्सली गवर्नमेंट चली मीन्स राजा शासन चली राजा शासन अमलर ये स्टोरीटा अच्छी निश्चित आम हो गलु कहीं ये मेंशन अच्छी सर्टेन किंग बर्तमान आम जाचु बर्तमान गणतंत्र शासन चलती मंत्री अच्छा प्रधानमंत्री हूँ कि राष्ट्रपति हूँ एम द्वारा ओके जननायकों द्वारा देश शासन होउछि तो यहाँ किंग जिते मेंशन अच्छी निश्चित भाव में कहीपर ये स्टोरीटा राजा मानक शासन समय राजा मानकर अमलर ये स्टोरीटा अटे तो देखा कौन अच्छी इट वंस ऑकर्ड टू ए सर्टेन किंग दैट इफ ही न्यू the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. That means it jaha achi eithuru ame anuman kari pariba it is a type of absurd thought eta goटा baseless thought goटा राजांको मनकु आसीथिला कि से जानिबा पई व्याकुल थिले से जानिबा पई बहुत ईगर थिले कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग जे कोनोसी काम स्टार्ट करबा को हेले राइट टाइम ता कोन एटा जानिबा पई से व्यग्र थिले एंड ताहा सहित से आ गोटे जिनस जानिबा पई चाहुतले कि who were the right people to listen to means who are the most important person for the king राजा को माने होचंती राइट पर्सन इंपोर्टेंट पर्सन जहाँकि केवल राजा से मानकर कथा ही मानिबे से मानकर कथा ही सुनिबे एंड whom to avoid and above all if he always knew what was the most important thing to do he would never fail in anything he might undertake. लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से जानिया पई चाहुतले कोन व्हाट इज द इंपोर्टेंट थिंग टू डू को कामटा होची तांको पक्षे इंपोर्टेंट जोटा को से करिवे दैट मींस ओवरऑल हमें कहबा गले ये जो तीनोटी प्रश्न थ्री क्वेश्चन दैट कम्स टू द किंग इज दैट व्हाट इज द राइट टाइम हु इज द राइट पर्सन व्हाट इज द राइट वर्क तो राजा भाबिले कि if he will able to know the answer of these three question he would become the successful person on the earth. राजा भाबिले कि जदि से ए तीनोटी प्रश्नर उत्तरटा को जानी जिबे निश्चित भाव से गोटे सफल व्यक्तित्व सफल मनीष ए धरा पृष्ठरे हेई पारिबे एथिपई ए प्रकार बेसलेस ए प्रकार उद्भट प्रश्न ताको माइंड को आसीथिला. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा कोन अछि and this thought having occurred to him he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. तो ऑब्वियसली ये जो चिंताधाराटा राजा मन को आसला निश्चित भाव से व्यग्र हेले निश्चित भाव से व्यतिव्यस्त हेले ये तीनोटी प्रश्नर उचित आंसरटा जानिपाई ओके एंड फॉर दैट ही प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु टीच हिम व्हाट वाज द राइट ओके. तो जिते बड़े प्रश्न तांको माइंड को आसिला राजा कौन कले प्रोक्लेम कले दैट मीन्स अनाउंसेस द किंग अनाउंसेस थ्रू आउट हिज किंगडम दैट whosoever give the answer of these three question he would provide he would reward that person. तो राजा कहले कि जेकोसी व्यक्ति मो किंगडम रे अछि जे मते ए तीनोटी प्रश्नर सैटिस्फैक्टरी आंसर दे दबो मु निश्चित भाव रे ताकू बहुमूल्य देकी पुरस्कृत करिबी. कौन आंसर देव the answer of these three questions what is the right time who is the right person and what is the right work to perform okay. So that's why he announces to provide great reward to the person who answer his three questions and learned man came to the king but they all answer his question differently. When the people got the invitation from the king to answer these three questions, they rushes to the kingdom, they rushes to the palace of the king and they answer differently to the king. And that means इठी जितेबेले समाने निमंत्रण पाई गले समस्तन को जितेबेले निमंत्रण दिया गला many learned person many knowledgeous person
ज्ञानी विद्वान व्यक्ति माने राजांकर कोठी की राजांकर दरबार को आसिले एंड से माने राजा को एई क्वेश्चन रो डिफरेंट आंसर देले। दैट मीन्स ए तीनोटी प्रश्न रो से माने डिफरेंट आंसर राजा को सुनेबा को लागिले। तो वर्तमान आम देखा कि राजा को जो प्रश्न ज्ञानी व्यक्ति माने देइथिले सेमानकर प्रश्न उत्तर को प्रकार थिला डिफरेंट थिला देखिबा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन I just would like to remember that the first question was what is the right time. Okay, in reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a timetable of days, months and years and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done at its proper time. तो राजांकर जो फर्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाट इज द राइट टाइम तार आंसर देवा को जाए कि प्रथम ज्ञानी व्यक्ति प्रथम विद्वान व्यक्ति जनक उत्तर ए प्रकार देले कि से कहिले किंग मस्ट ड्रॉ ए टाइम टेबल। राजा को गोटे समय सारणी तैयारी करने को पड़ो, राजा को गोटे रूटीन तैयारी करने को पड़ो, राजा को गोटे टाइम टेबल तैयारी करने को पड़ो। कहार टाइम टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड इयर्स, दिनर मासर वर्षर पूरा टाइम टेबल तैयारी करने को पड़ो एंड ही मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल। एंड राजा से टाइम टेबल को बेस करी ही काम करवा उचित। दैट मीन्स टाइम टेबल रे से जहाँ मेंशन करिथिबे से काम ही से समय रे करिवे, तेबे जाई कि राजा सब काम को राइट टाइम रे उचित समय रे करि पारिबे। एटा आंसर थिला प्रथम ज्ञानी व्यक्तिंकर आंसर थिला। नेक्स्ट देखिबा ज्ञानी व्यक्ति से प्रथम प्रश्न रो कोन उत्तर देइथिले। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. The second ज्ञानी व्यक्ति जनक ए प्रकार उत्तर देले कि it is very much difficult for a person to decide the right time. तो राजा होचंती सिंगल पर्सन इंडिविजुअल पर्सन, तो राजा क्षेत्र रे एटा बहुत कठिन कि से डिसाइड करिवे कोटा तांको पई उचित समय अटे कोटा उचित समय नाही। बट से गोटे सजेशन देले कोन, वन मस्ट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम। तो ये कहले किंग मस्ट नॉट एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम। राजा निजे अलसरे कि आइडली निजर समय को बितेबा उचित नुहे। पास टाइम दैट मीन्स मेरी मेकिंग करवा एंजॉयमेंट करवा, राजा निजर समय को अपचय न करवा उचित। एंजॉयमेंट रे हो एंटरटेनमेंट रे हो आइडली किल करिबारे हो ए सबु रे निज समयटा को अतिबाहित करवा उचित नुहे। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। दैट मीन्स राजा कौन करवा उचित कि तांको जो कामटा जिते बेले आसुछि तांको सम्मुख रे से समय रे से कामटा सारी देबा उचित। दैट मीन्स शॉर्टली आमे कहिबा को गले आमे कहि परिबा किंग मस्ट अटेन ऑल द वर्क which comes to him, okay, or he must act according to the flow of time, okay। तो समय रो स्रोत सहित जो काम सब आसुछि तांको सम्मुख रे से काम गुड़ा को सुचारू रूपे संपादन करि चलिबा उचित, तेबे जाय कि से ठीक समय रो सद्विनियोग से करि परिबे। तो थर्ड व्यक्ति जनक कोन कहिले प्रथम क्वेश्चन आंसर देखिबा। अदर्स अगेन सेड दैट however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything, okay। तो ये थर्ड व्यक्ति जनक कहले सेम जिनस कहले however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। तो थर्ड व्यक्ति जनक आंसर देवाक जाइए कहले राजा जेते अटेंटिव हुंतु ना कहीं, राजा जेते स्मार्ट हुंतु ना कहीं, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हिम, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट इन हिज पार्ट टू डिसाइड द राइट टाइम।
राजा जिते एक्टिव होंतु ना कहीं किंतु तांका पक्षे एटा असंभव व्यापार कि से राइट टाइम टाकू चूज करिबा एंड फॉर दैट king has the council of wise man. They can give the king the right suggestion regarding the perfect time. तो ये से कहले राजा पक्षे एटा संभव नुहे से खोजी बाहर करवा गोटा उचित समय तो से राजा दरबार रे राजा पैलेस रे काउंसिल ऑफ वाइज मैन अच्छा काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ वाइज पीपल अच्छा दैट मीन्स राज कार्य साहाय्य करने बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति माने अच्छा से माने डिसाइड करवा उचित राजा को समयटा हूँ उचित समय। तो नेक्स्ट देखिबा फोर्थ व्यक्ति जनकर कौन आंसर देले फर्स्ट क्वेश्चन रो देखिबा बट देन अगेन अदर सेड देयर वर समथिंग व्हिच could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. तो ये से व्यक्ति जनक कहले तो राजा पक्षे सबु जिनिस को वेट करवा सबु कथा को काउंसिलर मान सम्मुखें रखा संभवपर नुहे. Then again others said there was something which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. तो ये से ज्ञानी व्यक्ति जनक फोर्थ ज्ञानी व्यक्ति जनक राजा को आंसर देवाक जाएंगे कहले कि राजा सबू टेक्निक जिनिस काउंसिलर मान सम्मुखें रखिकी ताहार उचित समय बाहर करवा एटा संभवपर नुहे. तो ये उचित समय जाना हेले राजा को दूरदृष्टि संपन्न होबाकू पड़िबो. राजा को आग को घटुवा जिनिस प्रति तांकर नजर थिबा उचित तांकर विजनरी थिबा उचित. तो फॉर दैट there are the group of magicians who could help king to find out what is going to happen next or what is going to happen in the future. तो ये राजा को साहाय्य करेंगे राजा ज्ञान थिबा दरकार कि आगु को कौन घटित होबाकू जाऊँगी तो से अकॉर्डिंगली राजा परफेक्ट टाइम रे से तांकर कामटा स्टार्ट करेंगे. तो राजा को निकट भविष्य विषय रे ज्ञान देवाकू मैजिशियन माने अछंती. मैजिशियन माने राजा को बतेइबे कि आगु कौन घटित होबाकू जाऊँगी एंड राजा से अनुसार एक्टिव रहीकि से कामटा को सुचारू रूपे आरंभ करेंगे. तो फ्रेंड्स आम बर्तमान जीवा सेकेंड क्वेश्चन को देखा. राजा सेकेंड क्वेश्चन कौन थिला तो राजा सेकेंड क्वेश्चन यह थिला कि हु इज द राइट पर्सन. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला कि व्हाट इज द राइट टाइम. व्हाट इज द राइट टाइम जोटा थिला तार आम डिफरेंट फोर पर्सन ठारू डिफरेंट आंसर पाइलु. तो बर्तमान देखिबा हु इज द राइट पर्सन. एठी लर्न मैन माने कौन आंसर दउछंती. Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. तो ये लर्न मैन माने उत्तर देवाक जाएंगे सेकेंड प्रश्नर उत्तर देवाक जाएंगे राजा को कहले कि द पर्सन हु इज मोस्ट नीडेड बाय द किंग आर हिज काउंसिलर्स. राजा जो माने बहुत इंपोर्टेंट व्यक्तित्व अच्छा से माने हेले राजा काउंसिलर अथवा राजा दरबारी. राजा दरबार रे जो माने अच्छा राजा मंत्री हुंतु राजकवि हुंतु वैद्य हुंतु सेनापति हुंतु सेनाध्यक्ष हुंतु राजकोष अध्यक्ष हुंतु ए माने हेले राजा काउंसिलर और राजा दरबारी जहाँ को कहा जाए से माने हेले राजा बहुत इंपोर्टेंट. अदर सेड आउ किसी ज्ञानी व्यक्ति कहले कि प्रीस्ट्स आर द मोस्ट नेसेसरी पर्सन फॉर द किंग. ओके कहीं सब कार्य आरंभ पूर्व से माने राजा को अनुकूल समय बाहर करदेवे पूजा अर्चना करिकी से माने काम आरंभ करेंगे. तो से पर्सन हेले प्रीस्ट माने हेले पुरोहित माने हेले पूजक माने हेले इंपोर्टेंट पर्सन. अदर सेड द डॉक्टर्स व्हाइल सम सेड द वॉरियर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी. आउ किछि कहले ज्ञानी व्यक्ति माने राजा डॉक्टर माने होछंती मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं से माने राजा स्वास्थ्यर खबर रखिबे. राजा जदि
सुस्थ सबल थिबे तो देश शासन करिपारिबे राज्य शासन करिपारिबे आउ किछि कहिले कि राजांको पई वैरियर्स माने सेना सामंत सैन्य सामंत माने राजांकर जो माने सैन्य सामंत अछंती से माने राजांको पई इंपोर्टेंट काहे कि ना से माने राज्य को प्रोटेक्शन देई पारिबे ओके दिस वर द different answer of four different answer of the second question who is the right person तो वर्तमान देखिबा थर्ड क्वेश्चन जोटा थिला तार आंसर कोन थिला थर्ड क्वेश्चन वाज who is the what is the right work ओके उचित कामटा कोटा राइट कामटा कोटा सेटा में वर्तमान देखिबा to the third question as to what was the most important occupation some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. So likely to be the first two questions, there were the various answer of the third question also. तो किसी ज्ञानी व्यक्ति माने तृतीय प्रश्नर उत्तर देवाक जाए कि कहले कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्युपेशन इंपोर्टेंट वृत्ति इंपोर्टेंट कार्य राजा पई होउछि कोन साइंस कि राजा साइंस उपरे विज्ञान प्रति ध्यान केंद्रित करबा उचित विज्ञान रो डेवलपमेंट प्रति कार्य करबा उचित अदर सेड इट वाज स्किल एंड वारफेयर राजा युद्धर समर कला उपरे ओके ध्यान केंद्रित करबा उचित कि निज देशर नागरिक मानक निजर राज्यर नागरिक मानक निजर राज्यर सैन्य सामंत मानक सामर्थ्य करबा उचित समर कला रे सामर्थ्य करबा उचित एंड अदर अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप आउ किछि ज्ञानी व्यक्ति जनक कहले कि राजा रिलीजियस वर्शिप रे ध्यान केंद्रित करबा उचित कि पूजा पाठ रे ध्यान नियोजित करबा उचित से कार्यटा होछि मुख्य कार्य तो ई प्रकार डिफरेंट डिफरेंट आंसर राजा को तांकर तीनोटी प्रश्न रो मिलिला तो निश्चित भाव में जिते डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिला राजा कौन सी प्रश्न सहित एकमत हो नथिबे निश्चित भाव में देखिबा लास्ट पैराग्राफ रे कोन मेंशन अछि ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. तो ऑब्वियसली निश्चित भाव में जिते बड़े सबु प्रश्नर उत्तर राजा पाइले बट कौन सी व्यक्तिंकर प्रश्नर उत्तर क्या सहित मिसु नथिला डिफरेंट डिफरेंट आंसर थिला तो ऑब्वियसली राजांकर जो कन्फ्यूजन तीनोटी क्वेश्चन को लेकिन थिला से बढ़ी जाइथिबो तो राजा काहारी आंसर सहित एग्री हेले नाही सहमत हेले नाही और राजा काहाकू भी पुरस्कृत कले नाही समस्त को बिना पुरस्कार देकी निज राज दरबार रु घोड़े देथिले ओके बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन वर्तमान सुद्धा राजा मन में जिज्ञासा थिला कि से तीनोटी प्रश्नर उचित आंसरटा से केमिति जानी पारिबे ओके एंड ही डिसाइड टू कंसल्ट ए हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम तो राजा ये डिसाइड कले कि जड़े हर्मिट को देखा करेंगे हर्मिट कह जाए सन्यासी को कह जाए हर्मिट कह जाए बैरागी को कह जाए राजा ये डिसाइड कले कि जड़े हर्मिट को देखा करेंगे सन्यासी सन्थ साधु सन्थ को देखा करेंगे जहाँकर बहुत चर्चा थिला जहाँकर नेम एंड फेम बहुत थिला रिगार्डिंग हिज विजडम तांकर विजडम को लेकिन तांकर ज्ञान को लेकिन चारिआडे बहुत चर्चा थिला राजा से प्रकार विद्वान ज्ञानी सन्थों को देखा करिया को चाहूले जहाँ द्वारा तीनोटी प्रश्नर उत्तर से इजिली पाई परिबे तो सो फ्रेंड्स आशा करुछि कि ये जो फर्स्ट यूनिट थिला हमर नॉन डिटेल स्टडीज रो जोटा कि +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई उद्दिष्ट थिला 3 क्वेश्चन तार फर्स्ट यूनिटा को बेस भल भाव में तुम बुझीपार तुम जदि किसी डाउट थाए निश्चय कमेंट सेक्शन रे मते पचार एंड वीडियो को लाइक कर निज सांग मान सहित शेयर करने को भूलब ना तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे सेकेंड यूनिट उपर डिस्कशन करबा थैंक यू।